Hello everyone. So today we'll discuss about the important topic that is assessment of nutritional status. Okay, because in the nutrition we are generally give the dietary advice to the patient. You should take this kind of diet. You should take this kind of diet because you are suffering from this disease condition because your health is very decreased. Generally क्या होता है हम पेशेंट को देख के या फिर किसी जनरल या होम में भी है जहाँ पे हम रहते हैं हम पर्सन को देख के परसीव करते हैं he is very thin. He is very look like undernourished. He is very obese. ये बहुत मोटा है, ये बहुत पतला है. ये undernourished लगता है. ये दिखने से ही malnourished लगता है. So exactly how you will assess these statements by your nutrition. Okay. So for that we have to assess the patient. Okay. So we will discuss today about the how you will assess the patient, whether the patient or the person are healthy, unhealthy, or another category. Okay, so in that we will discuss about today our learning objective is by the end of this lecture, the reader should be able to know the different method of the assessing the nutritional status, to understand the basic anthropometric techniques. This is a method of nutrition assessment, applications, and the reference standard. Okay, how you will refer the standard, how you will applicate that particular standard, and how you will take the anthropometry techniques, anthropometry measurement to the different kind of techniques. Okay, then so in that, first of all, the introduction, the nutritional status of the individual is often the result of many interrelated factors. ठीक है, तो जो किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, किसी भी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो डिपेंड करता है उसके इंटररिलेटेड फैक्टर्स में. बहुत से जो न्यूट्रिशनल स्टेटस के इंटररिलेटेड फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किस टाइप का फूड लेता है या उसकी डेली हैबिट्स कैसी हैं. ठीक है, या फिर उसकी डेली एक्टिविटीज कैसी हैं. जो फूड है इट मे बी कि वो हेल्दी फूड लेता हो लेकिन वो हाई क्वांटिटी में फूड लेता हो. इट मे बी कि वो लो क्वांटिटी में फूड लेता हो लेकिन अनहेल्दी फूड लेता हो. ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फूड इनटेक क्वांटिटी क्वालिटी एंड फिजिकल हेल्थ. डिपेंड करता है कि कितनी मीन्स इट डिपेंड अपॉन द इनटेक ऑफ फूड कि किस तरह का फूड ले रहा है. जिसमें का क्वांटिटी हाई ज्यादा ले रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है या एवरेज ईटिंग कर रहा है या लेस ईटिंग कर रहा है. जो वो ले रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो फूड प्रोडक्ट वो ले रहा है गुड क्वालिटेटिव है, हेल्दी फूड है या हाई अनहाइजीनिक फूड है या फिर आपकी बिलो एवरेज बैलेंस डाइट है. कि फिजिकल हेल्थ कैसी है पर्सन की, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ विच काइंड ऑफ डाइट दे हैव टू स्पेशल नीडेड. ओके, द स्पेक्ट्रम ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस स्प्रेड फ्रॉम द ओबेसिटी टू सीवियर malnutrition. ठीक है, तो जनरली जो स्टेटस आता है न्यूट्रिशन का वो ओबेसिटी से डाउन होके एवरेज, नॉर्मल, देन सॉरी नॉर्मल, देन एवरेज, देन malnourishment. ठीक है, तो ये क्या है आपका एक स्पेक्ट्रम है न्यूट्रिशनल स्टेटस का. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू विल फाइंड आउट द whether the patient is obese, whether the person is healthy, whether the individual is a means average or the below average on a malnutrition. Okay, so in that the nutritional assessment why. So what is the why we are doing a nutritional assessment? The first is to identify the individual or the population group at the risk of becoming malnourishment. So we have to find out the community whether they having a risk of the malnourishment, especially the pregnant women. Okay, those are pregnant. If she are not taking a proper amount of diet, it may be her or his baby that her baby are suffering from the malnourishment. Okay, the identify individual or the population group who are the malnourished, and you have to identify from the population how many people are the obese, how many people are the malnourished. Okay, because in India, under 5 year, majority of the under 5 year children are having a malnourishment problems. Okay,
So in that, another is to develop the healthcare program on the basis of these assessment. जब आप identify करोगे, these community people are suffering from the malnourishment, these kind of people having the obesity, these kind of people are needed to awareness about the health, how they're maintaining their health because they are average persons. So on the basis of these identification, you have to prepare one healthcare program to meet the community need which are defined by the assessment. जो आपने assessment लिया है, ठीक है, उसके बेसिस में आप कम्युनिटी की नीड को फुलफिल करने के लिए एक प्रोग्राम डेवलप करो. इसलिए भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं. ठीक है, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन वंस इनिशिएटेड. ओके, जब भी आप उसे इनिशिएट करो तो आपके जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो कहते हैं इफेक्टिवनेस होना चाहिए. तो उसकी इफेक्टिवनेस होना चाहिए. उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर आप कैसे करोगे, बाय द इवैल्यूएशन. ठीक है, and the method of nutrition assessment. So there are the different kind of method of nutrition assessment. The first one, nutrition is assessed by two type of the method. First one is direct method, next one is the indirect method. The direct method deal with the individual. ठीक है, directly हम जैसे deal करते हैं individual के साथ, that is the direct method. And measure objective criteria by the indirect method using the community health indirect that reflect the nutritional census. इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में जनरली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम इंडिकेट करते हैं, उसकी पर्टिकुलर हेल्थ को इंडिकेट करके बता सकते हैं कि वेदर दीज आर कम्युनिटी पीपल आर द हेल्दी और नॉट. से फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में मेजॉरिटी ऑफ द अंडर 5 बेबी आर द malnourishment. Okay, that means it will be indicating the people are not taking a proper amount of food. It may be they having a socio-economical status is less, or it may be the unhygienic food. Okay, there is another factor which are actually influencing the health of the babies. Okay, so by there are the generally two methods. The first one is direct method, जहाँ आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इंडिविजुअल का मेजरमेंट करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एंटोमेट्री चेकअप किया, हेल्थ चेकअप किया, ठीक है, और उसका हेड टू डू एग्जामिनेशन लिया. इनडायरेक्ट मेथड में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का सर्वे करने के बाद जो आपके पास आया है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस में आपने कहा कि दीज कम्युनिटी आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज. दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड. ओके, now the direct method of the nutrition assessment. So there are the summaries of A, B, C, D. First one A. A is the anthropometric measurement. Anthropometric measurement में आपका आता है head circumference, chest circumference, mid-arm circumference, ठीक है, hip ratio and waist ratio. One by one we will discuss about this one. Biochemical laboratory method. In a biochemical laboratory method, it's very means reliable method. By that we have to easily find out, or initial time find out the person are suffering from any kind of disease condition. So for example, आपने किसी का लेबोरेटरी टेस्ट दिया है, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पेशेंट की बॉडी में ये डेफिशिएंसी है. ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में डेफिशिएंसी है, उसके बेसिस में आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो. ठीक है, एंथ्रोमेट्री में आप जनरली क्या फाइंड आउट करते हो, एग्जैक्टली कि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हुआ है. क्लिनिकल मेथड्स. क्लिनिकल मेथड्स मीन्स आपने देखा होगा इन नर्सिंग ऑल्सो वी हैव टू डू द नर्सिंग असेसमेंट. सेम लाइक द क्लिनिकल मेथड्स होते हैं आपके. फॉर हेड टू डू एग्जामिनेशन वी हैव टू डन, you have to see each and everything. For example, hair कैसे हैं, eye color कैसा है, skin color कैसा है, any kind of pigmentation, leg कैसे है, joint bone कैसा है, ठीक है. Then the dietary evaluation method. Dietary evaluation methods, for example, अपने देखा होगा हम क्या होता है, day by day we have to conduct the researches. ठीक है, तो जनरली जब किसी भी ओबेसिटी पर्सन से रिसर्च की जाती है तो उसका मील प्रोग्राम देखा जाता है कि इन लास्ट मंथ और उसका अर्ली जो मील है वो कैसा है. ठीक है, जैसे लास्ट मंथ से उसने क्या 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 ईट किया है, या लास्ट 24 आवर्स से उसने क्या लिया था, कितनी क्वांटिटी में लेता है, वो जो क्वांटिटी है उसमें कितनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं. ठीक है, so these are the methods generally we are discussing today. And next one is the indirect methods of the nutrition assessment. So indirect methods including the ecological variable, including the crop production, economical factor as per the capita income, population density and social habit, vital health statistics, particularly the infant under the 5 year mortality infant index. ठीक है, तो indirect method में हमने देखा फर्स्ट है इकोलॉजिकल वेरिएबल इंक्लूडिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है,
नेक्स्ट वन द इकोलॉजिकल फैक्टर एज पर द कैपिटल इनकम पॉपुलेशन डेंसिटी। हम देख सकते हैं कि सोशल हैबिट कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पर कैपिटल इनकम पर्टिकुलर पर्सन की सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, ठीक है। बिकॉज जिसका जितना अच्छा स्टेटस होगा दे आर टेकिंग, वो उतना क्या कर सकते हैं, दे हैविंग अ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ अ hygienic food or healthy food or the balanced diet. Okay, economical factor for example, sorry, the vital health statistics, vital health statistic का मतलब होता है for example death rate, okay, और mortality rate, morbidity rate, disease condition, that particular disease condition और community particular disease condition सफर करेगी। जिसमें आपको कहा कि किसी particular community में क्वाशिकर है, पी माल और मेरास्मस है, ठीक है। तो इससे भी आप क्या देख सकते हो, पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडर 5 ईयर चाइल्ड का असेसमेंट कर रहे हो, तो आपने देखा उसके हेल्थ स्टैटिक्स देखे कि लास्ट टू लास्ट ईयर में दिस फुल कम्युनिटी, दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, around 60% of the baby having a PEM problems, ठीक है। that means कि more than half of the population are suffering from the PEM, PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी malnutrition problems होती हैं, ठीक है, बेबीज में। जनरली क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेबी एट द टाइम ऑफ द बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ द एंटीनेटल टाइम, मदर ने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, इसलिए बेबी क्या है, पुअर बेबीज है। पुअर पुअर इन द सेंस बर्थ जो वेट है उसका वो कम है, ठीक है, malnourished बेबी है। then after the birth of the baby also will not take a proper amount of food, just because of that the half of the, more than half of the population are suffering from the क्वासिकर और मरासमस। ओके, ये हेल्थ स्टेटिक्स हैं, इससे भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो किसी पर्सन का हेल्थ स्टेटस। Now we will discuss about the clinical assessment. In the clinical assessment, it is an essential feature for all the nutrition survey. Like it is a simple and the most practical method of the asserting the nutritional status and group of the individual. जैसे हम हॉस्पिटल में भी करते हैं, whenever the patient are came in the hospital, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उनको हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, as like हम clinical assessment करते हैं, ठीक है। It is utilized a number of the physical signs, जैसे in that specific and non specific, हम क्या करते हैं, फिजिकल साइंस के बेसिस पे हम भी क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे जो क्या है स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन है या फिर नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन है। जैसे स्पेसिफिक मीन जो पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन को दिखाता है, नॉन स्पेसिफिक मीन जो क्या करता है, मीन्स एनी काइंड ऑफ द सिम्टम विच आर नॉट साइन ऑन पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, जो किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन को नहीं दिखाता लेकिन दैट इज अबनॉर्मल, वो नॉर्मल से वेरिएट है, ठीक है। that are known to be the associated with the malnourishment, deficiency of vitamins and micronutrients। ये दिखाता है कि पेशेंट को क्या है, malnourishment है या किसी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसकी बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। नाउ देन क्लिनिकल असेसमेंट, इन दैट गुड न्यूट्रिशन हिस्ट्री शुड बी ऑप्टेन। तो हम ये करते हैं, हम अपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ओके, तो गुड न्यूट्रिशन असेसमेंट का उसका हिस्ट्री लेंगे, उसका अर्ली असेसमेंट हिस्ट्री लेंगे हम, ठीक है। जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन विद स्पेसिफिक अटेंशन टू ऑर्गन लाइक हेयर or angle of the mouth, gums, nails, skin, eye, tongue, muscle, bone, thyroid gland, ठीक है। So these are the organs generally we have to observe for the nutrition, for the any kind of the nutrition abnormality. Detection of the relevant sign help in establishing the nutritional diagnosis. So first of all we have to detect the any kind of the relevant sign, जो क्या करते हैं particular disease condition को दिखाते हैं कि पेशेंट की बॉडी में ये सिम्टम्स है, ये साइन है, so that means the patient having a these kind of problems or lacking of nutrients, ठीक है। So in that, what is the advantage of the clinical assessment? The first is the fast and easy to perform. It is very easy to perform. You have to take head to examination of the patient, okay, and fastly you have to do. Inexpensive, इसमें कोई आपका मनी नहीं लग रहा है। नॉन इन्वेसिव, इसमें आप किसी भी इन्वेसिव थिंग की जरूरत है। इन्वेसिव थिंग जब हमको क्या करते हैं, कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या है, नॉन इन्वेसिव है। लिमिटेशन, डिड नॉट डिटेक्ट अर्ली केसेस, तो हम लिमिटेशन मीन्स ये क्या करता है, अर्ली केसेस को डिटेक्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी होती है तो पहले इंटरनल चेंजेस आते हैं, देन वो सिम्टोमेटिक होकर हमारी एक्सटर्नल चेंजेस में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में किसी चीज की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में हमें कब फील होती है, जब
हम अपनी नॉर्मल डेली रूटीन से वेरिएट हो जाते हैं, हमारी नॉर्मल डेली रूटीन में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, देन ओनली वी हैव टू फाइंड हाँ मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुई, वो हमारे न्यूट्रिशनल हैबिट्स की वजह से, इट मे बी कि वो लास्ट ईयर से, ये लास्ट टू लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई हो। तो आपने कहा बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चेयर्स चलने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज दे आर ओबीज, उनकी ओबेसिटी की वजह से क्या है, उनके जॉइंट पेन हो रहा है, बट वो ओबेसिटी क्या है, एकदम से तो नहीं आई ना, वो स्लोली स्लोली उसकी बॉडी में इंक्रीज हुई है, ठीक है। नाउ द क्लिनिकल साइन ऑफ द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, in that first of all you have to see the hair, here the spare or the thin hair, spare or thin hair का किसी के भी अगर स्पार या थिन हेयर है, दैट मीन दे हैविंग अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, बायोटिन डेफिशिएंसी, ठीक है। और आपने देखा होगा जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स की मेडिसिन आती है उनमें प्रोटीन, जिंक और बायोटिन ही होता है, मेजोरिटी तो बायोटिन होता है, ठीक है। बायोटिन क्या करता है, हमारी हेल्थ को मीन्स सॉरी हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके रूट को स्ट्रॉन्ग करता है और उसे थिक बनाता है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इजी टू पुल आउट, अगर आप किसी की हेयर इजीली पुल आउट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो देखा होगा बहुत से लोग कॉम्बिंग करते हुए बहुत से हेयर निकल आते हैं, स्लाइड भी पुल अप होता है तो इमीडिएटली पुल मींस इजीली आउट हो जाते हैं हेयर, ठीक है। तो वो क्या, दैट मीन दे हैविंग अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। देन corkscrew एंड coiled hair, corkscrew hair में होता है जिससे किसी के जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, उनके सराउंडिंग एरियाज में ब्लीडिंग, पिन पॉइंट ब्लीडिंग्स होती है, स्पॉट्स होते हैं पिन पॉइंट ब्लीडिंग, दैट मीन द पेशेंट हैविंग अ विटामिन सी और विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। So we have to observe the hair in three things, the spare and thin hair, किसी के पतले बाल हैं, thin hair हैं, that mean they having a deficiency of the protein, zinc and biotin deficiency, easy to pull, अगर स्लाइड पे पुलिंग अगर आप करते हो हेयर को वो निकल आते हैं तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। क्रॉकस्क्रू का मतलब होता है कि फॉलिकल्स के सराउंडिंग एरिया में पिन पॉइंट ब्लीडिंग प्रेजेंस है, तो ठीक है, दैट मीन द पेशेंट हैविंग अ विटामिन सी विटामिन ए डेफिशिएंसी। So in the mouth, glossitis. So glossitis is the inflammation of the tongue. Okay. अगर किसी भी पर्सन के माउथ में यानी कि टंग में अगर कोई इंफ्लामेशन हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन पेशेंट हैविंग अ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, रेबिनोफ्लेविन डेफिशिएंसी, नियासिन डेफिशिएंसी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसी के बेसिस में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसे कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। तो ब्लीडिंग एंड स्पंजी गम्स, अगर किसी का जो गम है वो ब्लीडिंग हो रही है, स्पंजी स्वेल्ड गम है उसके, तो विटामिन सी, ए और के, फॉलिक एसिड, नियासिन की उसे डेफिशिएंसी है। Leukoplegia, it is a thick white grayish patches usually inside your mouth, आपने देखा होगा माउथ के अंदर क्या होता है, thick white grayish patches होते हैं, ठीक है। So that means the patient having a B complex deficiency, folic acid deficiency, niacin deficiency, B12 deficiency, vitamin E deficiency, okay। Sore mouth and tongue, ठीक है, अगर माउथ और टंग में सोर्स प्रेजेंस है तो विटामिन बी डेफिशिएंसी, B12, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, नियासिन, फॉलिक एसिड एंड आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आईज। First, so what you have to assess in the eyes, the night blindness and the ophthalmosis. जो ophthalmosis मतलब होता है protrusion of the eyeball, okay? So that mean अगर किसी की eyeball क्या protrude हुई है, protrude मतलब बाहर की तरफ इस तरह से आई है, eyeball की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? That is ophthalmia. And किसी person को अगर night blindness है, that means vitamin E deficiency है। Photophobia, द फोटोफोबिया मीन्स होता है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ द लाइट, किसी पर्सन को एक्सट्रीमली लाइट की सेंसिटिविटी है, दैट इज द फोटोफोबिया। ब्लरिश होता है, अगर जैसे बहुत ज्यादा लाइट आने पर देखा होगा कि हम जैसे बहुत ज्यादा अगर धूप आ रही है, ठीक है, तो हमें दिखना बंद हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, ब्लरिश सा होता है, ठीक है। दैट मीन दे हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन, अगर कंजक्टिवा इन्फ्लामेट होती है तो उससे क्या, विटामिन B2 एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे आप अपने खुद का न्यूट्रिशन असेसमेंट भी कर सकते हो। नाउ द नेल्स, स्पूनिंग नेल्स का मतलब होता है सॉफ्ट नेल्स, ठीक है। तो स्पून लाइक होता है, ठीक है,
दैट मीन द पेशेंट हैविंग अ आयरन डेफिशिएंसी। जो इजीली क्या होते हैं, आपने देखा होगा इजीली नेल्स कट हो जाते हैं, कहीं पे कट लगता है वो टूट जाते हैं। ट्रांसवर्स लाइट, ठीक है, अगर अगर आपके नेल्स में ट्रांसवर्स लाइट प्रेजेंस है, लाइंस है बहुत ज्यादा ट्रांसवर्स, दैट मीन पेशेंट को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है। पेलर, अगर स्किन क्या है, पेलर है, ठीक है, दैट मीन पेशेंट को फॉलिक एसिड, आयरन, B12 की डेफिशिएंसी है। फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस, ठीक है, तो फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस में होता है एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द कैरोटीन इन फॉलिकल। अगर जब कहते हैं नेम से पता चल रहा है फॉलिकल हाइपर केराटोसिस, ठीक है, यानी कि जब कहते हैं फॉलिकल्स में हाइपर यानी कि ज्यादा, केराटोसिस में कैरोटीन ज्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं follicular hyperkeratosis. That means the patient having a vitamin B deficiency, vitamin C deficiency. Okay, the flanking dermatitis, that is the patient having a PEM, protein energy malnutrition, vitamin B2 deficiency, vitamin A deficiency, zinc and niacin. Okay, पिगमेंटेशन, डेस्क्वामेशन। पिगमेंटेशन डेस्क्वामेशन से तब बॉडी में क्या होता है, स्लाइट पिगमेंटेशन हो जाती है। अब मैंने कहा बहुत कि जब हम सन एक्सपोज करते हैं स्पेशली तो एक्सेस अमाउंट में यूवी रेज हमारी बॉडी में क्या करती हैं, इफेक्ट करती है, पिगमेंट होते हैं। जनरली दे आर हैविंग पीएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इन द निएसेंस, नॉट ओनली द एक्सपोजिंग इन द सन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसे स्पॉट्स होते हैं बॉडी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली जो हमारी बॉडी जो सन एक्सपोज कर रहा है सिर्फ उस एरिया में नहीं होंगे, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होंगे। द ब्लूइशिंग, द ब्लूइशिंग इज द विटामिन सी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ब्लूइशिंग मीन्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट विदाउट ब्रेकिंग, अगर बॉडी में कोई भी ऐसे डिस्कलरेशन प्रेजेंस होता है, ठीक है, तो ब्लूइशिंग हम बोलते हैं। दैट मीन विटामिन के, विटामिन सी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। Now next one is the thyroid gland. In the thyroid gland, what you have to assess in the monitoring area far from the C place, the goiter is a reliable sign of iodine deficiency. आपने देखा होगा इस तरह से क्या होता है, दिस इज योर नेक सी प्लेस, ठीक है, तो नेक सी प्लेस से क्या होता है, द माउंटेन जो एरिया है दैट इज अ वेरी फार फ्रॉम योर सी प्लेस, ठीक है, तो दैट इज द पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम द ग्वाइटर। ठीक है, और जब आपका नेक इसके अलावा क्या होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है, दैट मीन द पेशेंट हैविंग द ग्वाइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट वन इज joint and bone, so help detect the sign of vitamin D deficiency, rickets। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, वीक और सॉफ्ट बोन होती है, जनरली चिल्ड्रंस की वीक बोन होती है, सॉफ्ट बोन होती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी इज द स्कर्वी। स्कर्वी जैसे ब्लीडिंग, स्कर्वी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स है या स्वेलिंग गम्स है, या फिर पेशेंट को प्रीवियस कोई हीलिंग, कोई वुंड हुआ है जिसकी हीलिंग नहीं हो पाई, दोबारा से वुंड क्या ओपन अप हो गया है, तो इंडिकेट करते हैं ज्वाइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज। Then next one is the anthropometry. Now the clinical assessment is finished. Okay, so clinical assessment generally we will assess by the head-to-toe examination of the baby, of the person, not only the baby as well as the adult also. Anthropometry method. So anthropometry is a measurement of the body weight, height, and proportion. It is the essential component of the clinical examination of the infant, children, and pregnant women. It is used to evaluate the both under and the over nutrition. Okay, the measure value reflect the current nutritional status and the don't differentiate between the acute and chronic changes. Generally, anthropometry जो measurements होते हैं, हमें क्या देखते हैं, mid arm circumference, head circumference, mid arm circumference एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें उनके ग्रोथ को चेक करने के लिए हेड सर्कम्फ्रेंस, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस। मिड आर्म का मतलब होता है इस तरह से आर्म के जो मिड एरियाज होता है वहां से हम लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बेबी जो हेड सर्कम्फ्रेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, और हेड सर्कम्फ्रेंस सॉरी चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो होता है 33 सेंटीमीटर होता है। मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस अगर हम लें तो दिस इज अ रेंज बिटवीन 8.2 to 9.7, ठीक है, and this 9.7 is varies to 9.12 also. Now the other anthropometry measurement is median circumference, skin fold thickness। skin fold thickness का मतलब होता है कि
जो हमारी जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ओबीस पर्सन पेशेंट होते हैं, उनका स्किन क्या होता है, फोल्ड जाता है, यानी कि जो सबक्यूटेनियस मतलब फैट होता है, ठीक है, वो लिफ्टेड हो जाता है, ठीक है, उसकी थिकनेस को ये हम मेजर करते हैं, जो सबक्यूटेनियस पेट से लटका हुआ जो मांस होता है, ठीक है, उसको हम जब फोल्ड करते हैं तो वो कहता है लिफ्ट अप जाता है, तो जो लिफ्ट अप एरिया होता है उसको हम मेजर करते हैं, बाय दैट वी हैव टू असेस द स्किन फोल्ड थिकनेस। हेड सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड एंड चेस्ट रेशियो जनरली क्या होता है, इसमें 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 35, चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज 30 to 33, especially in the newborn babies. Hip and waist ratio. So one by one we will discuss. So anthropometry for the children, this accurate measurement of the height weight is essential. The result can be used to evaluate the physical growth of the children. जैसे जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद हम क्या करते हैं उसे, जैसे ही वो बॉर्न होता है, first of all we have to check the, we have to assess the baby any kind of the congenital abnormality, then we have to do the head to toe examination, that is a newborn assessment, comes under the newborn assessment. In then we have to assess the head circumference, chest circumference, mid-arm circumference, height, weight of the baby. Okay. By that we have to assess the exact growth of the baby. For the growth monitoring, the data are plotted on the growth chart over the period of the time that is enough to calculate the growth velocity, which can then be compared to international standard. Okay. तो ग्रोथ वेलोसिटी जनरली ये करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ चार्ट, आपने देखा होगा ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें क्या करते हैं बेबी जब 6 मंथ के बाद, स्पेशली आफ्टर द 6 मंथ बेबी को कहते हैं उस चार्ट के अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जाता है कि बेबी में कितना ग्रोथ हुआ है, उसकी हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बेसिस में, एज वेल एज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के बेसिस में। Okay, so growth velocity is to evaluate the growth through the height and weight presentable. Okay, तो जितनी height and weight present हो रही है उसके basis में हम क्या करते हैं, growth velocity निकालते हैं, and is compared then the national international standard. जैसे for example अगर हम जैसे BMI की बात करते हैं, ठीक है, body mass index की बात करते हैं, so in Asian peoples the body mass index in between to 18.5 to 22.9, और अगर हम अदर्स में देखें तो इट इज 18.5 to the 25 पॉइंट समथिंग। ओके, तो मेजरमेंट फॉर द हाइट एडल्ट के लिए हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो सब्जेक्ट स्टैंड इरेक्ट, आपने देखा होगा एक हाइटोमीटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो अप एरिया होता है, हेड एरिया होता है, वो मूवेबल होता है, सो दैट की हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो जो हाइटोमीटर है वो पे स्टैंड करें और अपने हेड को स्ट्रेट रखे, आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड की आगे की तरफ सीधा देखें, जहाँ तक कि उसका वॉल्ट आता है, ठीक है, वॉल्ट एरिया पता है ना आपको हेड का, तो जहाँ तक उसका वॉल्ट एरिया हेड का, वहां पे क्या करेंगे, मेजर कर देंगे कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। देन द वेट मेजरमेंट, वेट मेजर हम जनरली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी करते हैं और आपकी बैलेंस बीम स्केल से भी करते हैं, स्प्रिंग स्केल जो होता है लेस रिलायबल। ओके, द वेट इन लाइट क्लॉथ नो शूज, जब भी आप वेट कर रहे हो तो आप नहीं करते हैं लाइट लाइट क्लॉथ पहने हुए होते हैं और शू अलाउड नहीं होता, ठीक है, और द स्पेशली द न्यूबॉर्न बेबीज वी विल completely remove the cloth, then only we have to take the baby, especially for the 0 to 7 days, because 0 to 7 days में क्या होता है, बेबी का वेट continuously decrease होता है। The international standard for assessing the body size in adult body mass index. Okay, the body mass index is computed using the following the formula: body mass index equal to weight in kilogram upon the height in meter square. Okay, तो इसके थ्रू हम किसी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं whether the baby and the person is obese or not. ठीक है, तो ओबेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं जनरली। Okay, the evidence show that the high BMI यानी obesity levels किसका हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको रेंज बताई है मैंने 18.5 to 22.9 in Asians, Asians comes under India also, ना, India also comes under the Asian side. So Asian India, the range of the BMI is 18.5 to 22.9. तो 22.9 से अगर ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट क्या है, ओबीज है, ठीक है, they having a good chance of the type 2 diabetic mellitus, high risk of the cardiovascular mortality and morbidity. Now the BMI according to WHO classification is WHO for all, not for the particular Asian country, it's for the all. Okay,
So BMI is less than 18.5 is underweight. ठीक है, अगर किसी का BMI 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि BMI कैसे निकालना है, वेट इन किलोग्राम अपॉन द हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना आपका वेट है किलोग्राम में आपको लिखना है और हाइट मीटर स्क्वायर करना है। ठीक है, BMI 18.5 to 24.5 is healthy weight range। ठीक है, जो BMI है वो 18.5 से 24.5 में के बीच में आता है तो हेल्दी वेट है। और इन पेशेंट की बात करते हैं तो 22.9 ओके। BMI 25 to 30, किसी पर्सन का BMI 25 से 30 के बीच में है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, जब हम रेंज दे रहे हैं 18.5 से 24.5, तो 25 से 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट है, ग्रेड 1 की ओबेसिटी आता है। अगर 30 से 40 के बीच में है तो ओबीज है, ग्रेड 2 की ओबेसिटी में आता है। और अगर मोर देन 40 है तो वेरी ओबीज है और मॉर्बिड और ग्रेड 3 की ओबेसिटी में आता है। ठीक है, so by that we have to categorize the person in the different categories of obesity. Okay, now the waist and the hip ratio. Okay, the waist hip ratio is measured at the level of the waist circumference is a measure at the level of the umbilical to nearest 0.5 centimeter. Okay, जब हम बेस रेशियो लेते हैं तो हम कैसे करते हैं, अम्बलाइकल मिड अम्बलाइकल में रख के इस तरह से हमें बेस लेना होता है। ठीक है, ये हम 0.5 सेंटीमीटर के नियरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन एब्डोमेन, जब भी आप इसे ले रहे हो आपका एब्डोमेन रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एक्सेशन टाइम पे आपको लेना है। ठीक है, और आपका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो नियर टू स्किन होना चाहिए, मतलब क्लोजेस्ट टू स्किन, बट आपको कोई भी चीज प्रेस नहीं करना है। ठीक है, आपके जो मसल एब्डोमेन है, मसल आर्म आपके साइड में होना चाहिए, फीट साथ में होने चाहिए। फीट शुड बी टुगेदर, जैसे आप स्ट्रेट खड़े हैं तो ना दोनों पैर साथ में, बोथ आर्म आपके साइड में होने चाहिए। और आपका जो एब्डोमेन है वो रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, आप इसे टाइट नहीं करोगे, अंदर की तरफ नहीं करना। You have to instruct whenever you have to take the base measurement. The measurement should be taken at the end of the normal expiration. Normal expiration measurement. The base circumference is the metallicity that is any other also अगर हम किसी another की comparison करते हैं तो base circumference is good. Okay, it has to propose that the base measurement along can be used to assess the obesity and two level of the risk has been identified. Okay, so generally क्या करते हैं, ये पोस्ट करता है बेस मेजरमेंट ओबेसिटी को, एज वेल एज बताता है द पेशेंट कौन से लेवल ऑफ ओबेसिटी में है और किसे कौन से डिजीज कंडीशन के रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो जनरली वी आर सेइंग इन द मेल एंड फीमेल बेस असेसमेंट इज लेवल 1। अगर लेवल 1 मोर देन in males more than 95 centimeter और female more than 80 centimeter है तो लेवल 1 के वेट सर्कमफ्रेंस एब्नॉर्मल वेट सर्कमफ्रेंस में आता है। ठीक है, लेवल 2 102 सेंटीमीटर से ज्यादा और 88 सेंटीमीटर से ज्यादा इन फीमेल। ठीक है, तो वो लेवल 2 के वेट सर्कमफ्रेंस में आता है। तो लेवल 1 इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट सर्कमफ्रेंस। अगर कोई लेवल 1 के मेजरमेंट में आता है जहाँ पे फीमेल का 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा है, और मेल का 94 सेंटीमीटर से ज्यादा लेवल 1 में आ रहा है। ठीक है, और लेवल 2 में 102 सेंटीमीटर से ज्यादा और 88 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो अगर किसी पर्सन का लेवल 1 में आता है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द एडल्ट एज देयर शुड बी नो फर्दर वेट गेन। तो उससे स्पेसिफिक करता है आप इससे ज्यादा वेट गेन नहीं कर सकते हो। और किसी पर्सन का लेवल 2 में आता है, दे हैविंग अ चांस ऑफ टाइप 2 डायबिटिक नाइटिस एंड द सीरियस कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, तो आप इंस्ट्रक्ट करोगे पेशेंट को कि अपने पेट को मैनेज करें। Hip circumference, it measures at the point of the greatest circumference around the hip buttocks to the nearest 0.5 centimeter। ठीक है, तो इसमें कितना है, मिड हिप सर्कमफ्रेंस हम लेते हैं। ठीक है, मिड में हिप को और सर्कमफ्रेंस लेने हम जो हमने हिप का सर्कमफ्रेंस करते हैं उसे पुल नहीं करना, नियर टू स्किन करना है, बट उसे पुल नहीं करना है। ठीक है, तो दैट के उससे क्या होगा, अगर हम उसे प्रेशराइज करेंगे तो सर्कमफ्रेंस कम आएगा। ठीक है, हम ये स्टार्ट करते हैं 0.5 से। द सब्जेक्ट शुड बी द स्टैंड एंड द मेजर शुड बी द स्क्वाट beside him। ठीक है, both measurements should taken with the flexible non-stretchable tap enclosing the contact with the skin but should not be depending on the soft tissue। ठीक है, intending of the soft tissue।
तो जब भी हम कहते हैं हिप सर्कमफ्रेंस लेते हैं या फिर हम एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस लेते हैं, एब्डोमेन हम लेते हैं नियर टू अम्बिलिकल एरिया से, हिप हम लेते हैं पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। तो जो हमारा हिप का मिड एरिया होता है, वहां से हम क्या करते हैं बटक्स का सर्कमफ्रेंस लेते हैं और हिप का लेते हैं हम अम्बिलिकल से। तो जब दोनों ही हम लेते हैं तो पेशेंट को बोलना है कि वो रिलैक्स हैं, प्रॉपरली स्टैंड अप पोजीशन में है, शुड नॉट बी मूवेबल, ओके, रिलैक्स होने को बोलना है, एब्डोमेन रिलैक्स होना चाहिए, ओके, और वो अपनी जो मसल्स हैं उसे टाइट नहीं करें, लूज छोड़ के रखें, ठीक है। और जब भी आप उन्हें ले रहे हो तो आप कोई भी टिश्यू को प्रेशराइज नहीं करोगे लेते हुए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द WHO यानी कि वेस्ट हिप रेशियो, हाई रिस्क वेस्ट हिप रेशियो इज अगर मोर देन 0.80 फॉर फीमेल, यानी फीमेल का अगर 0.80 से ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हें क्या है हाई रिस्क, और मेल का 0.95 से ज्यादा है तो उन्हें हाई रिस्क है। बेस मेजरमेंट इज more than 80% of the hip measurement of the woman and the 95% for the male indicate the central upper body obesity। अगर किसी पर्सन का वेस्ट मेजरमेंट 80% से ज्यादा है उसके हिप मेजरमेंट के, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है, या फिर किसी मेल का वेस्ट मेजरमेंट उसके हिप मेजरमेंट से 95% ज्यादा है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की जो अपर बॉडी है वो ओबीज है। इट कंसिडर द हाई रिस्क ऑफ डायबिटिक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और WHO बिलो दिस कट ऑफ लेवल इज कंसिडर लो रिस्क। अगर किसी भी पर्सन का 0. किसी फीमेल का 0.80 से कम है और मेल का 0.90 से कम है तो इंडिकेट करता है दे हैविंग अ लेस चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ द रिस्क, ओके। तो वेस्ट हिप रेशियो इज वेस्ट सर्कमफ्रेंस अपॉन द हिप सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस आया है divided by the hip circumference and you will get the WHO, okay। Now the advantage of the anthropometric obesity objective with the high specificity, speciality and the sensitivity। आप क्या कर सकते हो, आप high speciality और sensitivity आप देख सकते हो, measure many variable of the nutrient deficiency like height, weight, mid-arm circumference, head circumference, skin fold thickness देख रहे हो, waist, hip ratio देख रहे हो, ठीक है, BMI देख रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू क्या कर रहे हो, वी हैव टू चेक द एंथ्रोपोमेट्रिक चेकअप ब्रेन रीडिंग आर द न्यूमेरिकल ग्रेडिंग ऑन द स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट। अब ये जो रीडिंग होती है अकॉर्डिंग इस रीडिंग के बेस को देखते हैं हम ग्रोथ चार्ट में, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द बेबीज और जो भी एडल्ट है उसका ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं है। रीडिंग आर रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल मीन्स प्रेजेंटेबल्स होती है, ठीक है, तो रीडिंग हम प्रेजेंट कर सकते हैं in an numerical form। नॉन एक्सपेंसिव एंड नीड मिनिमम ट्रेनिंग, इसको तो मिनिमम ट्रेनिंग की नीड होती है और एक्सपेंसिव नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ ऑन्टोमेट्री, इंटर ऑब्जर्वर एरर इन मेजरमेंट, इंटर ऑब्जर्वर मतलब टू पर्सन इसको मेजर करते हैं तो दोनों के मेजरिंग में स्लाइट डिफरेंस आते हैं, ठीक है। लिमिटेड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू बहुत बड़ा डायग्नोसिस फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट ही देख सकते हैं जनरली हम देखा जाए तो। प्रॉब्लम विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जब हम किसी जनरली हमें प्रॉब्लम ऐसा फील होती है जब हम किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो करते हैं, ठीक है, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल है BMI, तो BMI मैंने आपको कहा इंडिया में 18.5 टू 24 पॉइंट समथिंग है, 22.9 है, और अदर्स में हम ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखते हैं WHO अकॉर्डिंग तो 18.5 टू 24.5 है, ठीक है। तो जो हमारे लोकल वर्सेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेटस है और अदर्स कंट्री का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है दैट इज वेरी डिफरेंट, ओके। द arbitrary statistical cutoff level for what consider as abnormal value, arbitrary मतलब based on the random choices, ठीक है, तो अगर हम रैंडम चॉइसेस के बेसिस में देखते हैं कट ऑफ वैल्यू को तो हम फॉर व्हाट कंसीडर, तो हम एग्जैक्टली हमें कंसीडर करने में प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्टली एबनॉर्मल और नॉर्मल वैल्यू क्या है, बिकॉज हमने क्या उसमें रैंडमाइजेशन किया, रैंडमाइजेशन से एक को लिया और एक को छोड़ दिया। डाइटरी असेसमेंट, now the by the dietary assessment also we have to assess the nutrition assessment, and then 24 आवर डाइटरी रिकॉल, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को 24 आवर डाइटरी रिकॉल में क्या क्या खाया, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, food dietary technique, observe food consumption. So in that, first of all, 24-hour dietary recall. A trainer interview asks the subject to recall the food and drink taken to previous 24 hours. तो 24 घंटे में उसने क्या खाया है या फिर क्या ड्रिंक किया आप पूछ सकते हो,
इट इज क्विक इजी डिपेंड अपॉन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम देख सकते हैं उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर डिपेंड करता है। बट कई बार क्या होता है पेशेंट प्रॉपरली बताता नहीं है, जो उसे नहीं खाना चाहिए वो आपको नहीं बताया कि मैंने ये खाया था, ठीक है। तो इट विल क्रिएटिंग अ समटाइम एरर, ठीक है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स, आप फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स से कर सकते हो। जिसमें मैथड सब्जेक्ट गिवन लिस्ट ऑफ द अराउंड 100 फूड आइटम्स टू इंडिकेट हिज और हर इनटेक फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी पर डे, पर वीक या पर मंथ। इससे हम क्या करते हैं, कुछ एक आइटम लिस्ट ऑफ आइटम फूड हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जिसमें उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी लिखी हुई होती है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो पर डे, पर वीक और पर मंथ कितना कंज्यूम कर रहा है, वो उसको मेंशन करता रहे, ठीक है। इनएक्सपेंसिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इजी टू यूज, हम इजीली इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज हमें उतनी वैल्यूज है, हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा पैसे की इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डाइटरी हिस्ट्री, इट इज द एक्यूरेट मेथड फॉर असेसिंग द न्यूट्रिशन असेसमेंट। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, द इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्ट बाय द ट्रेन इंटरव्यू। इसे कौन लेता है, जो ट्रेन इंटरव्यूज होता है, बिकॉज दे आर आस्किंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू द पर्सन रिगार्डिंग देयर डाइटरी हैबिट्स, ओके। डिटेल अबाउट यूजुअल इनटेक, टाइप, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग नीड टू बी ऑब्टेन, ठीक है। कब कब उसने कितना लिया, कौन कौन से टाइप का फूड दिया, कितना अमाउंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो फूड लेता है, कौन से टाइमिंग में वो लेता है। All these things they have to measure. The cross checking to variety of data to important, और साथ में cross checking वो करेगा, ठीक है। Then the food daily, food intake, type, amount should be recorded by the subject at the time of consumption. तो डेली जब वो लेता है, ठीक है, डाइट, आपने एक फूड डायरी बनाए, उस फूड डायरी में डेली जो भी कंज्यूम कर रहा है, कितना अमाउंट ले रहा है, कौन कौन सा फूड ले रहा है, वो उसे मेंशन करता रहे। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेली मेजर। इट मे बी कि जो जिससे आप हिस्ट्री ले रहे हो वो किसी भूल जाए, ठीक है। इस लेंथ ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पीरियड टू रेंज बिटवीन 1 to 7 days, जनरली हम 7 to 7 days क्या लेते हैं। रिलायबल बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये रिलायबल तो होता है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, ओके। Observational food consumption, the most unusual method in the clinical practice, but it is recommended for the research purpose. So observation food consumption का मतलब है generally, as I told you before, that we are doing day by day research. We are involving a different kind of research to find out the exact causes of the diagnosis. So the mean eaten by the individual is the weight and the contain are the exactly calculated. तो हम क्या कहते हैं, जितना उसने लिया है इंडिविजुअल ने, हम ये होता है उसके मीन्स द मीन ईटिंग टेकन बाय द इंडिविजुअल वेटेज एंड कंटेंट, कितना उसने लिया है, कौन सा उसने कंटेन लिया है, एग्जैक्टली हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने मील में उसका इतना अमाउंट ऑफ फैट था, प्रोटीन था, आयरन था, whatever the minerals are present, ठीक है। The method is characterized by having a high degree of the accuracy with expensive needed time and the effort, क्योंकि बहुत एफर्ट चाहिए कि इतने टाइम में उसने ये खाया है, उसमें इतना अमाउंट ऑफ इतना फूड था, इतना अमाउंट ऑफ फैट था और इतना अमाउंट ऑफ कैलोरीज थी, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट विल टेक मोर टाइम एंड इट also expensive. Initially, laboratory assessment. This is very easy method to find out the health status of the any person. Like आप hemoglobin level से देख सकते हो किसी patient का। Most important thing हम hemoglobin लेते हैं, ठीक है। Useful index of the overall state nutrition. Besides the anemia, it also tell us about the protein, trace element nutrition, ठीक है। तो hemoglobin level देख सकते हो कि whether the patient are anemic or not. Stool examination से देख सकते हो कि any kind of the intestinal parasites are present or not, ठीक है। यूरिन डिस्ट्रिक्ट और माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देख सकते हो द एल्बुमिन आर हाई और लो, ओके। शुगर आर प्रेजेंट, एब्सेंट, और एनी काइंड ऑफ द ब्लड आर प्रेजेंट, एब्सेंट। Now, the specific leg test में measurement of the individual nutrients in the body fluid, for example, serum retinal, serum iron, urinary iodine, vitamin D. ये भी क्या करते हैं हम ब्लड टेस्टिंग सेंड करते हैं लेबोरेटरी में, बाय दैट वी हैव टू गेट द एग्जैक्ट फाइंडिंग और एग्जैक्ट the current situation of the person, detection of the abnormal amount of metabolic in the urine, जैसे urine of the urine creatinine and hydroxyproline ratio, ठीक है। ये सब देख सकते हैं ब्लड के थ्रू, यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू। एनालिसिस ऑफ द हेयर, नेल, स्किन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप लेबोरेटरी में भी हेयर्स का और नेल्स का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री मेथड, इट इज वेरी रिलायबल एक्चुअली, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोस डिटेक्ट कर सकते हैं सिम्टम्स आने से पहले। इट इज प्रिस्क्राइब एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल, प्रेजेंटेबल होता है। यूजफुल द वैलिडेट डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द डाइटरी मेथड and example the comparing the salt intake within 24 hours urinary excretion,
ठीक है, कितना यूरिन एक्सक्रीशन हुआ है, कितना उसने इनटेक किया है। तो इजीली आप लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं whether the patient having any kind of the nutritional deficiency or not. The limitation of the biochemical methods is time consuming. It will take time. तो आपको पता है रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। जैसे एंथ्रोमेट्री चेकअप, उसके लिए आपको पे नहीं करना होता। बाय द हेल्थ कैम्प दे आर असेसिंग यू एंथ्रोमेट्री चेकअप। आपकी हिस्ट्री लेंगे उसको आपको पे नहीं करना पड़ेगा, या आपको हिस्ट्री लेते हुए किसी पेशेंट को कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी अप्लाई ऑन अ लार्ज स्केल। आप इसे लार्ज स्केल में नहीं ले सकते। आपको बहुत लोगों का ब्लड टेस्ट में, एक पर्सन के ब्लड टेस्ट में टेक मोर टाइम। अगर आप 100 का या 200 का तो आप एवरेज लेते हो तो टेक मोर टाइम। आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, आपका एनर्जी, आपका फिर एज वेल एज द मनी। नीड ट्रेन पर्सन एंड फैसिलिटी। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए पर्सन चाहिए, ठीक है। और नीड ट्रेन पर्सन चाहिए जो कि ब्लड टेस्ट कर सके, एग्जैक्ट यूरिन टेस्ट कर सके और उसकी रिपोर्टिंग कर सके। So I hope you understood the nutritional assessment, how you will assess the nutritional status of the person from their obesity to the malnutrition. We have to characterize the person, the obesity, obese person, normal person, average person, below average person, and the malnourished person. Okay. Thank you so much.